Good morning students, welcome to today's video lecture. Today we will be starting with a new chapter 11, which is 3D geometry. This whole chapter is based on the application of vector algebra. तो vector algebra की सारी theory आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए. Let us revise the topics which we did in 3D geometry of 11. Now in 3D or R3, 3D को R3 बोलते हैं, 3 dimension. There are three mutually perpendicular planes. There are three mutually perpendicular planes. There are three mutually perpendicular planes, namely, आपको याद है XY plane, YZ plane, and ZX plane. These planes are known as Cartesian planes. Are known as Cartesian planes. या Cartesian coordinate planes. You can also say they are known as Cartesian planes or Cartesian coordinate planes. In 3D, there are also three mutually perpendicular lines. In 3D or R3, there are three mutually perpendicular lines, namely कौन सी थी? X-axis, Y-axis, and Z-axis. These lines are known as Cartesian coordinate lines. Are known as Cartesian coordinate lines. Coordinate axis. They are known as coordinate axis. The Cartesian coordinate axis. These are known as Cartesian coordinate axis. तो आपको पता है any point in 3D क्या है? P x y. तो any point in 3D क्या होगा? Any point in 3D or R3 is given by P x y z. यहाँ पे x को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, y को बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, z को बोलते हैं z कोऑर्डिनेट of P. So in 3D there are three mutually perpendicular planes, xy plane, yz plane, zx plane. These planes are known as Cartesian coordinate planes. These planes are known as Cartesian. You write these planes are known as Cartesian coordinate planes. These planes are known as Cartesian coordinate planes. So in 3D there are three mutually perpendicular planes, xy plane, yz plane, zx plane, and xy plane, yz plane, zx plane are known as Cartesian coordinate planes. और 3D में three mutually perpendicular lines होती है, x axis, y axis और z axis. उसको बोलते हैं Cartesian coordinate axis या coordinate axis. Any point in 3D और R3 क्या होता है? P x y z. तो जस्ट मैं बताता हूँ एक रफ diagram. Okay, now this is the point of intersection. This is origin OX, OY, OZ. 3D है, डॉटेड इसको पीछे एक्सटेंड करो तो ये हो जाएगा Z डैश. OX को पीछे एक्सटेंड करो, डॉटेड बता रहा हूँ तो ये हो गया X डैश. OY को नीचे एक्सटेंड करो तो वो हो जाएगा Y डैश. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि x axis is x dash. X axis is x dash. You know the point of intersection. You know Cartesian coordinate axis. मतलब x axis, y axis and z axis. They intersect at the point known as origin. Okay? तो आपको याद रखना है कि x axis, y axis, x axis, y axis and z axis meet at origin O 0 0. X axis is x dash is the x axis, x dash is x axis, x dash is x axis, y dash is y axis, y dash is y axis, z dash is z dash is z axis.
ठीक है, z dash is z dash is z axis। फिर आपको पता है कि OX is positive x axis, OY is positive y axis, OZ is positive z axis, OX dash is negative x axis, OY dash is negative, sorry, OX is positive x axis, OX dash is negative x axis, OY is positive y axis, OY dash is negative y axis, OZ is positive z axis, OZ dash is negative x axis। अब ये तीन प्लेन तो है, जो तीन प्लेन है xy प्लेन, yz प्लेन, zx प्लेन, xy प्लेन, yz प्लेन, zx प्लेन, they meet each other at origin। तो उसको क्या बोलते थे हम लोग? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। तो आप लिखोगे the three Cartesian coordinate planes are three Cartesian coordinate planes in 3D or R3 are xy plane, yz plane and zx plane, xy plane, yz plane and zx plane। अब जो मैंने आपको बताया कि OX is positive x axis, OX is positive x axis, OY is positive y axis and OZ is positive z axis। तो आपको याद रखना है कि XOY is xy plane, XOY is xy plane, YOZ is yz plane, and ZOX is zx plane। ठीक है, is zx plane। अब मैं आपको बताऊंगा कि एनी पॉइंट इन 3D जो होता है, एनी पॉइंट इन 3D जो होता है वो pxyz होता है। तो उसमें x को क्या बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं, z को क्या बोलते हैं। दिस वी हैव डन इन 11th standard। दिस इज whatever knowledge right now I am giving is very very important। ओके, अब एनी पॉइंट इन 3D क्या है? एनी पॉइंट इन 3D और R3 क्या था? is p x y z। एनी पॉइंट इन 3D और R3 is p x y z। तो उसमें x को क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट, y को क्या बोलते हैं? y कोऑर्डिनेट, z को क्या बोलते हैं? z कोऑर्डिनेट। अब आपको पता है कि x कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन क्या है? Here x is here जो x है उसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ p, x कोऑर्डिनेट ऑफ p। और ये इसका डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज x कोऑर्डिनेट? कैन यू रीड व्हाट इज x कोऑर्डिनेट? नाउ फॉर p x y z, x is x coordinate of p। What is x coordinate of p? It is perpendicular distance of p, it is perpendicular distance of p from, क्या है? It is perpendicular distance of p x y z from which plane? It is distance from yz plane given the sign of x axis, given sign of x axis along which it is measured, given sign of x axis along which it is measured। मतलब अगर x कोऑर्डिनेट इज मेजर्ड अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस OX तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, और अगर x कोऑर्डिनेट इज मेजर्ड अलोंग OX डैश नेगेटिव x एक्सिस OX डैश तो x कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव। So x कोऑर्डिनेट x is the x coordinate and it can be positive or negative because OX is positive x axis, OX dash is negative x axis। So x को बोलते हैं x coordinate of p और उसका क्या डेफिनेशन है? It is distance from y z plane, it is distance from y z plane। So for p x y z, x को क्या बोलते हैं? x coordinate of p जो आपको पता है perpendicular distance from the y z plane and given the sign of x axis along which it is measured। फिर for p x y z, y को क्या बोलते हैं? y को बोलते हैं y coordinate of p। और ये क्या है? It is perpendicular distance of the point p x y z from which plane? From which plane? Can we correct? Yes, zx plane। From zx plane
So given the sign of, और उसको साइन किसका देंगे, given sign of the y-axis along which it is measured. So it is given the sign of its perpendicular distance of p x y z from the zx plane. Given the sign of y-axis along which it is measured, ठीक है। और लास्ट में क्या था, सिमिलरली यहाँ पे जो y एक्सिस होता है वो क्या होता है, o y विद इज पॉजिटिव y एक्सिस और o y डैश नेगेटिव y एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव और नेगेटिव फॉर p x y z। व्हाट इज द z कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन क्या होगा, z कोऑर्डिनेट विल बी, z इज द z कोऑर्डिनेट ऑफ p, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p x y z फ्रॉम द xy plane। उसको किसका साइन देंगे, गिवन द साइन ऑफ z axis along with it is measured. So for p x y z, z is z coordinate of p, और वो जो z है उसको हम डिफाइन क्या करेंगे, perpendicular distance of p x y z from the xy plane, perpendicular distance of p। तो ये जो z है, तो z कोऑर्डिनेट है, उसका डेफिनेशन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p x y z from xy plane, given the sign of z axis along which it is measured, ठीक है, along which it is measured। Up, just try to understand. Suppose right now we are in the classroom, तो this is ये लाइन जो है, ये लाइन जस्ट रिकलेक्ट, जब अपने क्लासरूम में थे तो ये आपको बोर्ड दिख रहा है, तो this line is suppose positive x axis, suppose this is positive x axis, ये ऊपर वाली लाइन जो जा रही है suppose वो positive z axis है, और एक लाइन आपकी तरफ जो आ रही है suppose वो positive z axis है। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, तीन लाइंस कंसीडर करो, पहली लाइन कौन सी, ये जो बोर्ड है, ये जो दीवार है उसका ये बेस, सो दिस लाइन along which I am walking, इसको पॉजिटिव z एक्सिस रखो, तो नेगेटिव x एक्सिस क्या होगा, पीछे वाला लाइन। फिर यहां से ऊपर ये जो दीवार है उसकी ऊपर वाली जो लाइन है एंड, उसको आप दिस लाइन गोइंग अपवर्ड्स, आप उसको पॉजिटिव y एक्सिस रखो, तो नेगेटिव y एक्सिस नीचे जाएगा। और तीसरी लाइन, ये जो दीवार है, the wall adjacent to this wall, इसका बेस, मतलब जो लाइन आपके तरफ आएगा उसको आप पॉजिटिव z एक्सिस रखो, तो नेगेटिव z एक्सिस क्या होगा, the line behind this। तो ये दीवार, इसमें x, ये this wall and the base, three walls are the basic thing, the floor, this wall, the wall वाला wall, floor जो है, and the wall adjacent to the board, वो तीन वॉल्स हो जाएंगे, वो तीन प्लेन्स होंगे। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव x एक्सिस है वो x, पॉजिटिव y एक्सिस को y, और पॉजिटिव z एक्सिस कहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे ओरिजिन पे। तो मैंने क्या बोला, xy प्लेन क्या होता है, x over, so x over, so this plane, this whole wall is xy plane। फिर y o z is the yz plane, तो पॉजिटिव y एक्सिस ऊपर था, पॉजिटिव z एक्सिस आपके तरफ था, so the wall adjacent to the wall is wall to adjacent, यहाँ पे wall है क्लासरूम में, that wall is the yz plane। और दूसरा, what is the positive z axis, the line towards you, and positive x axis is this line, so the floor of the classroom is the zx plane। Now that is very clearly understood to you now कि three mutually perpendicular planes कौन से होंगे। अब ये three mutually perpendicular planes, the three mutually perpendicular planes, three mutually perpendicular Cartesian coordinate planes, कौन से coordinate planes, xy plane, yz plane, zx plane, yz plane, zx plane, and along with उसके अंदर along with positive x axis, positive y axis, along with three mutually perpendicular coordinate axis, namely x axis, y axis and z axis, divide
okay, along with 3 mutually perpendicular Cartesian coordinate axes, namely Cartesian coordinate axis, namely कौन कौन सी वो लाइंस हैं, x axis, y axis and z axis, y axis, z axis, divide 3D or R3 into 8 equal parts, each equal part, each equal 8 equal parts, each of 8 equal parts of 3D or R3 is known as an octant, तो कितने ऑक्टेंट हो गए? सो 3D is divided into 8 equal parts by x y plane, y z plane, z x plane and x axis, y axis and z axis, known as octant. So there are 8 octants. There are 8 equal octants in 3D और R3, ये तो आपको पता है. There are 8 equal parts and 8 equal octants. There are 8 equal octants or there are 8 equal octants in 3D or R3. Means the xy plane, yz plane, zx plane and x axis, y axis and z axis divide 3D in 8 equal parts. Each equal part is known as an octant. कितने octants होते हैं 3D में? 8 octants होते हैं. Now about this octants we have done in 11th standard. तो वो नंबर आपको याद रखना पड़ेगा और वैसे ही आपको करना पड़ेगा. So now जो 8 octants हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ. ओके, यहाँ पे है, ओके, यहाँ पे ऑक्टेंट का नंबर है, फिर x कोऑर्डिनेट, फिर y कोऑर्डिनेट, फिर z कोऑर्डिनेट और फिर नेम ऑफ द ऑक्टेंट. वो आपको याद रखना है. ओके, sometimes this can come as an MCQ, simple clarity. तो 11th की टेक्स्ट को आपको रेफर करनी पड़ेगी. वहां से मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूं. ओके, so there are 8 octants. So octant नंबर यहाँ पे है. फिर x कोऑर्डिनेट कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव. फिर यहाँ पे होगा कॉलम ऑफ y कोऑर्डिनेट, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. फिर z कोऑर्डिनेट, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर of the octant. फिर x coordinate का साइन, y coordinate का साइन, z coordinate का साइन and name of octant. Okay, total 8 है. So 1 2 3 4 5 6. I don't think आप किसी को भी याद होगा, ध्यान रखना पड़ेगा. 7 and 8. तो अच्छे तरीके से आपको ये 8 ऑक्टेंट के नाम याद रखने हैं. नाउ उसमें आपको कैसे पैटर्न फॉलो करना है कि पहले x कोऑर्डिनेट में ओके फर्स्ट ऑक्टेंट, फिर रोमन लेटर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 and 8. So total 8 octants. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. उसमें x कोऑर्डिनेट आप ऐसे लिखो पहले प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर अगेन प्लस माइनस माइनस प्लस. पैटर्न याद रखो. x कोऑर्डिनेट में क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस. फिर y कोऑर्डिनेट में आप ऐसे लिखोगे 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस. और z कोऑर्डिनेट में 4 प्लस and then 4 minus. हो गया. ये 8 ऑक्टेंट आपको ऐसे याद रखने हैं. 8 ऑक्टेंट, 8 ऑक्टेंट है. 1 रोमन लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 और वो 8 ऑक्टेंट में x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट का साइन अगर आपको विदाउट मिस्टेक लिखना है पैटर्न है आपको x कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर y कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और z कोऑर्डिनेट प्लस 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 माइनस माइनस माइनस. अब इसका
इसका नाम कैसे रखेंगे, इसका नाम कैसे रखेंगे? अगर पॉजिटिव, अगर x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव then it is measured along positive x axis to ox आएगा. if x coordinate is negative then it is measured along negative x axis ox dash, तो उसमें x dash आएगा. if y coordinate is positive then it is measured along positive y axis oy, तो उसमें y आएगा, कैपिटल y आएगा. फिर अगर y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो it is measured along negative y axis oy dash, तो उसमें y dash आएगा, कैपिटल. फिर if the z coordinate is positive then it is measured along positive z axis oz, तो उसमें कैपिटल z आएगा. और अगर z coordinate नेगेटिव है then it is measured along negative z axis, तो उसमें z dash आएगा. तो इसका नाम मैं कैसे रखता हूं? इसका नाम हम रखते हैं इसके डिफरेंट 8, there are 8 names. तो पहला x, you can go with ox, पहला आप o रखो तो भी चलेगा. x coordinate is positive so o, x coordinate positive so ox, y coordinate is positive so y, oy positive z axis and z coordinate is positive so oz. फिर ये नेगेटिव है तो इसका नाम टेक्स्ट बुक में x o y z लिखते हैं, so o x y z और x o y z इसका उसमें ज्यादा चेंज नहीं. इसमें x coordinate is negative so o x dash y z, फिर इसमें आएगा o x dash y dash o x dash y dash z. कैपिटल S का जब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव तो कैपिटल Y, z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव तो कैपिटल Z, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव तो x डैश, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव तो y डैश, और z कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा तब z डैश. ओके, सो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, सो इसका नाम आएगा ox y डैश z, इसका नाम आएगा ox y z डैश, o x डैश y z डैश. फिर इसका नाम आएगा o x dash y dash z dash, and the last one is o x y dash z dash. Okay, so 8 options. The 3 Cartesian x y plane, y plane, z x plane divide the 3D with 8 equal parts known as an octant. Number of the octant 1 2 3 4 5 6 7 8. रोमन लेटर x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, y कोऑर्डिनेट 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस, z कोऑर्डिनेट में 4 प्लस 4 माइनस. और नाम कैसे आएगा? इसका आएगा ox. if x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव तो कैपिटल x, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव तो कैपिटल y, z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव तो कैपिटल z. अगर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव तो x कैपिटल x डैश, अगर y कोऑर्डिनेट नेगेटिव तो कैपिटल y डैश, और z कोऑर्डिनेट नेगेटिव तो कैपिटल z डैश. और आप समझ गए इट इज मेजर्ड अलॉन्ग व्हाट. तो इसका नाम आएगा o कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z, इसका नाम आएगा o x डैश y z, फिर इसका नाम आएगा o x डैश y डैश z, o x y dash z, o x y z dash, o x dash y z dash, o x dash y dash z dash, and last one o x y dash z dash. ओके, ये हो गया. अब आपको दो तीन पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे रिगार्डिंग द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस. पहली थी x एक्सिस, सो x एक्सिस इज हियर x x dash, ये आपको याद रखना है. x x dash इज x एक्सिस, x dash इज x एक्सिस. फिर आपको याद रखना है x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आपको पता है? पॉइंट ऑन. आपको याद रखना है कि x एक्सिस के बारे में मैं दो तीन चीजें यहां पे लिख रहा हूं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहला पॉइंट आप क्या याद रखोगे? x एक्सिस इज x x डैश. x एक्सिस कौन से पॉइंट से पास होती है? ओरिजिन. सो एक पॉइंट जो आपको हमेशा पता है, पॉइंट ऑन x एक्सिस इज o 0 0 0. फिर आपको पता है कि x एक्सिस पे दो वेक्टर होते हैं i कैप ox इज पॉजिटिव x एक्सिस और ox डैश इज नेगेटिव x एक्सिस. तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि डायरेक्शन, ओके, आप ऐसा सोच सकते हो, ओके, पॉइंट ऑन x एक्सिस इज ओरिजिन. और फिर आप याद रखो कि एनी पॉइंट ओके. अभी के लिए मैं आपको दो तीन चीजें लिखा देता हूं, आप प्लीज याद रखो. x एक्सिस इज x डैश. फिर आप ये याद रखो कि एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज गिवन बाय t x 0 0. और आपको याद रखना है कि एक पॉइंट, वन पॉइंट on x axis is origin O00, is origin O0 0 0. और आपको याद रखना है
कि z axis can be along positive x axis and z axis can be along negative x axis. इसके लिए तो आप ऐसे याद रखो कि डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस अगर वो OX वेक्टर है, if direction of x axis can be OX positive x axis, वो होगा I cap, तो पॉजिटिव I cap which is 1 0 0. और दूसरा डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस क्या होगा? दूसरा डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस क्या होगा? कॉमन सेंस, डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस वो नेगेटिव y एक्सिस मतलब o x डैश भी हो सकता है और उसमें कौन सा वेक्टर होता है? माइनस I कैप को हो जाएगा -1 0 0. अब सेम वे आप लोग लिख लो y एक्सिस के बारे में, z एक्सिस के बारे में लिख लो. चलो तो ये हो गया x एक्सिस के बारे में ना, y एक्सिस के बारे में लिखो ना. y axis is y डैश. फिर आपको पता है कि any point on y axis क्या होता है? any point on y axis होगा p0 y0, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 0. फिर आपको याद रखना है कि एक पॉइंट कौन सा होता है आपको y axis पे? ओरिजिन. और डायरेक्शन ऑफ x axis y axis क्या होगा? Now y axis can be along positive y axis and y axis can be along negative y axis. तो y axis पे पॉजिटिव y axis पे कौन सा वेक्टर है? j कैप. और नेगेटिव y axis पे कौन सा वेक्टर है? k कैप. अरे माइनस j कैप. तो आपको याद रखना पड़ेगा. जस्ट वन मिनट. सो ओके, तो पहले आप जल्दी से वो लिख लो. ठीक, एक बार अगर आपको ये थ्योरी लर्न हो गई तो एक्सरसाइज और एग्जांपल्स बहुत इजी है और आप आराम से ये चैप्टर मेरे साथ खत्म कर सकते हो वेक्टर के साथ इसका रिवीजन. तो प्लीज अच्छे तरीके से आप ये सब सॉल्व करो, तभी आपको ये चैप्टर इजीली आ जाएगा. और सपोज यू डोंट डू ऑन डेली बेसिस विद मी, इट विल नॉट हेल्प यू. सो y is y डैश. फिर दूसरा पॉइंट क्या है? एनी पॉइंट ऑन y axis is given by p0 y0. one point on x axis, one known point, ऐसे याद रखो, one known point on y axis is origin O0 0 0. फिर डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस क्या हो सकता है? डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस क्या हो सकता है? इट कैन बी अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस मतलब OY, और पॉजिटिव y एक्सिस पे कौन सा वेक्टर होता है? j कैप 0 1 0. और दूसरा डायरेक्शन ऑफ समटाइम्स you can also take direction of y axis as negative y axis. OY dash O आएगा माइनस j कैप, तो वो हो जाएगा 0 -1 0. ये छोटी चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली z एक्सिस के बारे में जो लिखा है आपको पता करो कि z एक्सिस इज z dash. फिर एनी पॉइंट ऑन z एक्सिस इज p0 0 z p0 0 z. Any point on z axis is p0 0 z. और फिर आप one known point on z axis और फिर डायरेक्शन ऑफ z axis खत्म करके लिखो. So that is very clearly known to you. Third is z axis. Third will be z axis. So z axis is z dash. फिर any point on z axis, any point on z axis is given by p0 0 z. दूसरा कौन सा एक पॉइंट z एक्सिस ओरिजिन से पास होता है? सो वन नोन पॉइंट ऑन z एक्सिस is origin O0 0 0. और दूसरा डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस
नाउ z एक्सिस कैन बी मेजर्ड अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस, OZ एंड z एक्सिस का दूसरा डायरेक्शन है नेगेटिव z एक्सिस, सो OZ डैश, तो OZ पे कौन सा वेक्टर आता है k कैप, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस is positive z axis will be OZ, तो उस पे है एक वेक्टर k कैप which is 0 0 1, और similarly direction of z axis will be equal to negative z axis will be OZ dash, उस पे एक वेक्टर है minus k कैप which is 0 0 minus 1। अब आपको xy प्लेन के बारे में मैं आपको बता देता हूं, xy प्लेन, yz प्लेन और zx प्लेन के बारे में मैं आपको समझा देता हूं। xy प्लेन, yz प्लेन और zx प्लेन के बारे में आपको भी थोड़ी थियरी पता होनी चाहिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन कौन से हैं? xy प्लेन, yz प्लेन, zx प्लेन। तो xy प्लेन में कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के बारे में समझाया, सिमिलरली yz प्लेन के बारे में आपको सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स पता होने चाहिए, और zx प्लेन के बारे में भी आपको सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स पता होने चाहिए। अभी जो मैंने आपको नॉलेज दिया x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, वो काफी हेल्पफुल होगा एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग रिगार्डिंग xy प्लेन, yz प्लेन एंड zx प्लेन। अब आपको दो चीजें याद रखनी है कि any point in 3D is any point in 3D क्या है, और R3 is E x y z, और आपको एक वर्ड याद रखना है, कि आपको कौन सा वर्ड याद रखना है? नॉर्मल इज अ लाइन, perpendicular to a given plane, अब ऐसे याद रखो कि a line perpendicular to a given plane is called normal of the plane, AOD मैंने किया था। normal is a line perpendicular to the tangent, is called normal of plane, ठीक है। अब x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में यहां पे खाली आपको ड्रॉ करके समझाऊंगा जो अभी मैंने आपको समझाया था। ओके, आपको पता है दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स अप, टुवर्ड्स राइट इज पॉजिटिव x एक्सिस, टुवर्ड्स अप इज पॉजिटिव y एक्सिस एंड अलाइन टुवर्ड्स यू। अगर आप इस रूम में, अगर क्लासरूम में आप इमेजिन करो तो टुवर्ड्स राइट, ये टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव x एक्सिस, टुवर्ड्स अप, इस दीवार का टुवर्ड्स राइट आपके तरफ से टुवर्ड्स राइट इज पॉजिटिव x एक्सिस, टुवर्ड्स अप विल बी टुवर्ड्स अप, ये पॉजिटिव x एक्सिस OX, पॉजिटिव y एक्सिस OY, और आपके तरफ जो लाइन आएगी विल बी पॉजिटिव z एक्सिस। सो दिस इज OX, दिस इज OY, दिस इज OZ, और मैंने आपको बोला था x OY, ये जो दीवार है दिस इज द xy प्लेन, फिर ZOX मतलब ये फ्लोर, ZOX इज द ZX प्लेन, और तीसरा YOX मतलब YOX ये हो जाएगा ये वॉल, इस वॉल को एडजेसेंट यहां पे परपेंडिकुलर वॉल है, वो वॉल, दिस इज द वॉल दैट इज द YZ प्लेन। अब x एक्सिस के दो डायरेक्शन होते हैं, पॉजिटिव x एक्सिस इज OX एंड नेगेटिव x एक्सिस इज x डैश, फिर और OY इज पॉजिटिव y एक्सिस, तो नीचे वाली जो लाइन होगी दैट विल बी OY डैश व्हिच विल बी नेगेटिव y एक्सिस, एंड सिमिलरली वो मैं डॉटेड बता रहा हूं, and similarly this is z dash, because z dash is negative z axis। अब आपको पता होना चाहिए जो अभी मैंने आपको बताया कि कि कोई भी x एक्सिस के दो डायरेक्शन होंगे, x एक्सिस पे दो डायरेक्शन होंगे, तो x एक्सिस में 4x आता है, ठीक है, और y एक्सिस जो अभी हमने किया ना, OX is positive x axis, तो उस पे जो डायरेक्शन वेक्टर है that you remember as 1 0 0, फिर OX dash is negative x axis, तो उसका जो डायरेक्शन वेक्टर होगा is -i which is -1 0 0, you understand? पॉजिटिव y axis पे कौन सा वेक्टर होगा j cap 0 1 0, उस पे
वेक्टर होगा 0 1 0 0 1 0 और नेगेटिव y एक्सिस पे टुवर्ड्स डाउन जो वेक्टर होगा वो होगा -j कैप, सॉरी I कैप विल बी टुवर्ड्स राइट 1 0 0 टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस cox, -I कैप -1 0 0 विल बी टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस cox डैश, फिर टुवर्ड्स लेफ्ट, फिर OY विल बी टुवर्ड्स अप, उस पे कौन सा वेक्टर आएगा j कैप 0 1 0 और -j कैप जो है 0 -1 0 will be towards down और दूसरा वेक्टर और z का पॉजिटिव z एक्सिस इज अलाइंड टुवर्ड्स यू, तो उस पे कौन सा वेक्टर आएगा k कैप, उस पे कौन सा वेक्टर आएगा k कैप पॉजिटिव z एक्सिस पे 0 0 1 डायरेक्शन की बात हो रही है और फिर टुवर्ड्स यू इज k कैप, तो आपसे अपोजिट टुवर्ड्स यू इज k कैप, तो अपोजिट में क्या जाएगा माइनस k कैप, सो इट इज माइनस k कैप और उसका डायरेक्शन आएगा 0 0 -1 0 0 -1। अब हम लिखेंगे थियरी रिगार्डिंग x y प्लेन, हम लिखेंगे थियरी रिगार्डिंग x y प्लेन। व्हाट इज x y प्लेन, कैन यू लिख दैट, व्हाट इज x y प्लेन, x y प्लेन इज x o y प्लेन, सो x y प्लेन था, x y प्लेन इज x o y प्लेन, उसमें x o y प्लेन या को x y बेटा रहेगा, तो उसमें पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस आता है। फिर आपको याद रखना है कि all the points on xy plane is xy plane, all points on xy plane have, आपको याद रखना है, have z coordinate 0, have z coordinate 0, so equation of xy plane क्या होगा, equation of xy plane is z is equal to 0, सारे पॉइंट्स का z कोऑर्डिनेट क्या है, सारे पॉइंट्स का z कोऑर्डिनेट 0 है, तो एनी पॉइंट ऑन xy प्लेन आप कैसे लिखोगे, एनी पॉइंट ऑन xy प्लेन क्या हो जाएगा p x y 0, एनी पॉइंट ऑन xy प्लेन क्या हो जाएगा, समझो xy प्लेन क्या था x o y प्लेन, xy प्लेन था x o y प्लेन, all points on xy plane have z coordinate 0, इसलिए सारे पॉइंट्स का x coordinate 0, so equation of xy plane आ गया, तो equation of xy plane आपको याद रखना है z is equal to 0, और दूसरा any point on xy plane is क्या होगा, उसका z coordinate 0, तो मतलब p x y 0। अब नॉर्मल क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल, नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, तो xy प्लेन ये दीवार है, दिस बॉल इज द xy प्लेन, तो इस बॉल को परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, xy प्लेन को कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है, z एक्सिस, तो z एक्सिस becomes the normal, so z axis is the normal, z axis is normal of xy plane, or you can write z axis is perpendicular, z axis is perpendicular, z axis is perpendicular, z axis is perpendicular to xy plane, so क्या हो जाएगा, therefore z axis is normal of xy plane, तो उसका मतलब नॉर्मल ऑफ xy प्लेन आप क्या क्या सोच सकते हो, OY अरे OZ which is k cap और OZ dash which is minus k cap, मतलब नॉर्मल मतलब कौन सी दो लाइंस या कौन से दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, तो आपको याद रखना है कि z एक्सिस इज द नॉर्मल इज z एक्सिस, तो z एक्सिस परपेंडिकुलर टू xy प्लेन, तो z एक्सिस इज नॉर्मल, तो आप ऐसा याद रख सकते हो कि नॉर्मल ऑफ xy प्लेन is k cap 0 0 1 और minus k cap which is 0 0 minus 1, ठीक है। अब सेम में आपको yz प्लेन और zx प्लेन के बारे में लिखना है, और हाँ कौन सा पॉइंट आपको पता है, नोन पॉइंट ऑन x ऑफ y प्लेन क्या होता है, वन नोन पॉइंट ऑन xy plane is origin,
is origin को 0 0 0 क्या आपको याद रखना है। दिस डायग्राम इज क्लियर। तो अब आप आराम से yz प्लेन और zx प्लेन के बारे में लिख सकोगे। व्हाट इज yz प्लेन? इट इज z प्लेन इज y o z। अब उस पे सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट 0 आएगा, तो उसका एनी पॉइंट ऑन the yz plane will be p 0 yz और इक्वेशन ऑफ द yz plane will be x is equal to 0। सेकंड प्लेन जो था वो था yz plane, वो था yz plane। तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज द yz plane? yz plane is क्या था? y o z plane। तो उसमें y o z plane मतलब दिस वॉल, तो ऑल पॉइंट्स आपको याद रखना है कि ऑल पॉइंट्स on yz plane have x coordinate 0 have x coordinate equal to 0 have x coordinate equal to 0 मतलब सारे पॉइंट्स जो हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं उसका सारे पॉइंट्स जो xy प्लेन yz प्लेन पे है, सारे पॉइंट्स जो yz प्लेन है उसका x कोऑर्डिनेट 0, तो उसका मतलब इक्वेशन ऑफ yz प्लेन क्या हो जाएगा? सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट 0, इसलिए क्या लिखेंगे? x is equal to 0। और फिर आप क्या लिखोगे? एनी पॉइंट ऑन yz plane, any point on yz plane is क्या होगा? उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्या लिखोगे? p 0 yz। any point on yz plane is all okay, x is equal to 0 0 y z। अब आप सोचो कि कौन सी लाइन yz प्लेन को परपेंडिकुलर होगी? कौन सी लाइन परपेंडिकुलर होगी? कौन सी लाइन परपेंडिकुलर होगी yz प्लेन को? yz प्लेन को परपेंडिकुलर x एक्सिस होगी। सो x एक्सिस आपको याद रखना है कि x एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू yz प्लेन। तो उसका मतलब नॉर्मल, therefore normal of yz plane क्या हो जाएगा? normal of yz plane x axis हो गया normal, so x axis is normal of yz plane। ओके, तो उस लॉजिक से नॉर्मल ऑफ yz plane क्या होगा? नॉर्मल ऑफ yz plane will be क्या होगा? नॉर्मल ऑफ yz plane will be, अगर पॉजिटिव x एक्सिस है तो I cap डायरेक्शन 1 0 0 और नेगेटिव x एक्सिस माइनस I cap, so you remember as -1 0 0। okay, और दूसरा one more point on yz plane is also origin on yz plane is origin। clear? अब ये 6 पॉइंट्स आपको क्लियरली आ गए तो zx प्लेन के बारे में आप आराम से अच्छे तरीके से लिख सकते हो। zx प्लेन, ओके, व्हाट इज zx प्लेन? zx प्लेन क्या होगा? zoy प्लेन। zx प्लेन होगा zoy प्लेन। सो zx प्लेन is zoy प्लेन। दूसरा, ऑल द पॉइंट्स ऑन zx प्लेन क्या होगा? ऑन द पॉइंट्स ऑन द zx प्लेन have उससे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन ऑफ zx प्लेन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ zx प्लेन याद रखो, व्हाट इज zx प्लेन? zx प्लेन इज zoy प्लेन, द फ्लो zoy प्लेन। ऑल द पॉइंट्स ऑन zx प्लेन है y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ zx प्लेन क्या होगा? सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 0, तो y इक्वल टू 0। फिर एनी पॉइंट ऑन zx प्लेन इज any point on zx plane is given by उसका y, सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 0, so px 0 z। कौन सी लाइन? ये फ्लोर जो है, ये जो फ्लोर है ये zx प्लेन है, ये प्लेन zx प्लेन है। इसको परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी? इसको परपेंडिकुलर एक लाइन होगी जो ऊपर जा रही है या दूसरी नीचे जा रही है। ऊपर जा रही वाली लाइन कौन सी है? पॉजिटिव y एक्सिस। और नीचे जाने वाली लाइन कौन सी है? नेगेटिव y एक्सिस। तो उसका मतलब y एक्सिस इज परपेंडिकुलर, सो y एक्सिस इज परपेंडिकुलर। नाउ y एक्सिस is
perpendicular to zx plane, is perpendicular to zx plane. इसका मतलब y axis क्या हो गया? Y axis becomes, y axis is normal of zx plane. फिर normal of zx plane का क्या होगा? normal of zx plane will be, normal of zx plane will be कौन सा? y axis होता है, y axis मतलब पॉजिटिव y axis या नेगेटिव y axis will be अगर पॉजिटिव y axis है ऊपर वाला तो वो होगा j cap, j cap 0 1 0 और माइनस j cap क्या होगा? माइनस j cap क्या होगा? माइनस 0 minus 1 0 और one known point on zx plane is origin. हो गया? तो ये सारे चीजें इस तरीके से मैंने आपको बता दी. This finishes the basic concept which you require for understanding the theory. zx plane is z y plane. All the points on zx plane have y coordinate 0 को शुद्ध रटना पाते हैं, वो भी एक पैटर्न है. zx plane है तो उससे y नहीं आता है, so all the points have y coordinate 0, so equation of zx plane y equal to 0. Any point on zx plane होगा p x 0 y और ऐसा याद रखने का कि y है तो y axis is the normal of the zx plane because इसमें y नहीं आता और y axis पे j cap और minus j cap होता है. वहां से zx plane पे origin आता है, so known point is origin on zx plane. उसी लॉजिक से आप xy plane और yz plane भी रटना बना सकते हो. See, अच्छे मींस समझ के लर्न करो वो भी चलेगा. डायग्राम तुमने ड्रॉ किया, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव z एक्सिस. उस पे जो भी वेक्टर्स है i कैप माइनस i कैप, j कैप माइनस j कैप, k कैप माइनस k कैप, वो आपको अगर याद रहेगा तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से आ जाएंगे. नाउ आफ्टर दिस नाउ वी विल कम टू 3D में. एक्चुअली दो चैप्टर्स क्लब हैं, lines in space or plane in space. Okay, so first of all the first topic is direction cosines of a line and direction ratios of a line and direction ratios of a line. अब आपको पता है कि लाइन के दो डायरेक्शन होते हैं, आपको पता है कि लाइन के दो डायरेक्शन होते हैं और जो वेक्टर होता है उसका एक ही डायरेक्शन होता है. जो वेक्टर होता है या रे होता है, a vector is a ray. What is a vector? Actually vector is a ray having one direction. Okay, so vector has only one direction, a line has two directions. तो अब वो बेसिक नॉलेज से हम स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ आपको याद रखना है पहला पॉइंट है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन. सपोज एक लाइन है L और उस पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं. दिस इज द लाइन L और उस पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं A B. सपोज टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, सपोज टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स on line L are A and B. So two distinct points A and B are on the line L. So आपको याद रखना है कि a line has two directions. A line has two directions. ये आपको पता है. और अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि a line has two directions. तो अगर ये लाइन में सोचना इसमें पे तो towards right और towards left. तो पहला डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ लाइन L, डायरेक्शन ऑफ लाइन L तो क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ लाइन L. और here points A B belong to line L. So therefore L is line A. ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा. अब पहला डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ line L will be, अगर मैं towards line के साथ will be vector AB. और दूसरा similarly you can write similarly second direction of line L will be
वेक्टर बी ए फ्रॉम बी टू ए विल बी वेक्टर बी ए, और वेक्टर बी ए क्या है माइनस ए बी। तो उसका मतलब लाइन के दो डायरेक्शन है, लाइन एल के दो डायरेक्शन है, प्लस ए बी एंड माइनस ए बी, ठीक है राइट, प्लस और माइनस ए बी। सो फॉर सो हियर ये जो डायग्राम था कि लाइन एल के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं ए और बी, तो डायरेक्शंस ऑफ लाइन कौन कौन से हो गए प्लस और माइनस ए बी, तो आपको पता चल गया। सो therefore directions of line L, directions of the line L which is equal to AB, मतलब उसके दो पॉइंट्स है A एंड B, वो होगा प्लस और माइनस वेक्टर AB, प्लस और माइनस वेक्टर AB, ठीक है, वो आपको याद रखना है। और उसके नीचे एक बार ऐसा है तो वापस ड्रॉ कर दो, लाइन इज L, उसके दो पॉइंट्स हैं A और B, one will be AB, vector AB, and the second will be vector BA. So, ठीक है, तो directions of lines हो गया। So, line has two directions. अब जो वेक्टर होता है उसका एक ही डायरेक्शन होता है। फॉर वेक्टर AB, फॉर वेक्टर AB, A is the initial point, ये आपको पता है, A is initial point, B is you can say terminal point or end point, it is terminal point, terminal or end point। और ये जो वेक्टर है is a vector directed from A to B, is a vector directed from A to B, ये आपको याद रखना है। और डायरेक्शन क्या होगा A to B, ओके, आपको याद रखना है। here ये जो वेक्टर B है इसको हम क्या बोलते हैं वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम A to B। और आपको याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर AB, इसका डायरेक्शन इज फ्रॉम A to B, दैट इज वेरी क्लियर। AB इज डायरेक्टेड फ्रॉम A to B, ठीक है, और उसका एक ही डायरेक्शन होगा, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम A to B, ठीक है। तो वेक्टर AB अगर आपको ड्रॉ करना है तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम A to B, ओके। फिर दूसरा अगर आप वेक्टर कंसीडर करो B to A या वेक्टर BA, फॉर वेक्टर BA व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट, B इज इनिशियल पॉइंट, A को क्या बोलेंगे टर्मिनल, A को बोलेंगे B इज द इनिशियल पॉइंट, और A हो जाएगा टर्मिनल और एंड पॉइंट, ठीक है, वो हो जाएगा A इज द, याद रखो, फॉर वेक्टर AB A इज द इनिशियल पॉइंट, B हो गया टर्मिनल और एंड पॉइंट। और आपको वो भी पता है कि ये जो वेक्टर है एंड जो वेक्टर BA है इज वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम, उसको करते हैं वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम B to A, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम B to A, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम B to A। और यहाँ पे आप याद रखो वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम A to B, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम A to B, ऐसे याद रखना, सिंपल, ओके। और आपको ये भी पता है कि वेक्टर इज अ रे हैविंग वन डायरेक्शन, और दूसरा वेक्टर BA इज इक्वल टू माइनस AB, आप सीधा लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके, यू कैन राइट। सो वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम B to A, सपोज दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज A, तो वेक्टर BA विल बी, दिस इज A, सो दिस इज वेक्टर BA। और आपको याद रखना है कि हियर वेक्टर BA is minus AB। और सेकेंड पॉइंट कि मैग्नीट्यूड ऑफ कोई भी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ कोई भी वेक्टर वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ कोई भी वेक्टर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द टर्मिनल पॉइंट। सो आपको क्या रखना है कि फॉर वेक्टर AB, भूलना नहीं है उसका मैग्नीट्यूड AB क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB इज डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। और दूसरा फॉर वेक्टर BA
what is the distance between, what is magnitude of vector B? It is distance between initial point and the terminal point. और आपको ये भी याद रखना है कि mod of A vector is equal to mod of B A vector, because distance between A and B is equal to distance between A and B is equal to distance between B and A. So आपको पता है कि for distinct points A and B, for distinct points A and B, आपको पता है कि as AE is equal to BA, magnitude of vector A will be equal to magnitude of vector B. सिर्फ ओके, अब डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में हम लिखेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में लिखेंगे। आपको पता है डायरेक्शन, एंगल्स, डायरेक्शन, कोसाइंस एंड ऑल दैट स्टफ बहुत अच्छे तरीके से हमने किया हुआ है। सो लेट अस रिवाइज those points. Just one minute, I'll have some water and then I will continue. Okay, so suppose a given line is capital L. Suppose a given line is capital L, and that line is making angles alpha, beta, gamma. Okay, मैं आपको बता देता हूँ. Let me write. Suppose the given line is L. Suppose आपको याद रखना है, और जितना थियरी में आपको लिखवाता हूँ, make the related theory and make a notebook which has all the theoretical points. सारे सम्स आपको अच्छे तरीके से एक्सेलेंट वे में आ जाएंगे. ओके, सपोज वी हैव अ लाइन, सपोज a line L is passing through origin. A line L is passing through origin O00, passing through origin O00, and suppose line L makes angles alpha, beta, gamma with positive x-axis, positive y-axis, positive z-axis respectively. ठीक है, एक लाइन L है which is passing through origin, and the line L is making angles alpha, beta, gamma with positive x-axis, with positive x-axis OX, with positive x-axis OX, positive y-axis OY, positive z-axis and positive z-axis OZ respectively. Positive z-axis OZ respectively. अब ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो जस्ट एक रफ डायग्राम में बना रहा हूँ. दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव जेड एक्सिस. यहाँ पे ओरिजिन है, इसको पीछे खींचो, दिस बिकम्स नेगेटिव जेड एक्सिस, ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड, फिर ओके, दिस इज ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड. खाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बता रहा हूँ, पॉजिटिव जेड एक्सिस बता रहा हूँ, पॉजिटिव जेड एक्सिस बता रहा हूँ. Positive x-axis OX, positive y-axis OY, positive z-axis is OZ, and there is a line L which is passing through origin. Suppose this is the line L which is passing through origin. This is the line L passing through origin. This is the line L which is passing through origin. Okay, so line L is making angle alpha. Is making angle alpha. The line L is making angle alpha with positive x-axis OX. The line L is making angle beta with beta is the angle made by the line with positive y-axis OY. And what is gamma? Gamma is the angle made by the line L with positive z-axis. और ऐसा है तो ये डॉटेड बता दूं वो भी चलेगा. So this is the angle. This will be the angle. Okay, this is our line L. ठीक है, आप समझ गए. ये 2D में मैं 3D बता रहा हूँ, आप समझ गए होंगे. ओके, सो दिस इज अवर लाइन L, एंड द लाइन L इज मेकिंग एंगल गामा, इज
making angle gamma with positive z x-axis OZ. So alpha is the angle between L and OX. Beta is the angle between line L and positive y-axis. Okay, ये आपको पता है, ये आपको पता चल गया. Let me explain again. A positive x-axis, positive y-axis और positive z-axis वापस ड्रॉ करो. Okay, positive x-axis, positive y-axis और positive z-axis आप वापस ड्रॉ करो. प्लीज नेगेटिव x-axis, नेगेटिव y-axis और नेगेटिव z-axis मत ड्रॉ करना. Okay. Our line is okay. Positive x-axis, positive y-axis की origin है. This is our positive z-axis. So x, y, z और यहाँ पे origin. There is a line L. This is our line L. Okay. और ये लाइन पीछे खींच रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. This is our line L. The line L is passing through origin and it is making angle alpha with positive x-axis OX. The line L is making angle beta with positive y-axis OY, and the line L is making angle gamma with positive z-axis. So here alpha is equal to angle between line L is angle between L and OX, where beta is angle between line L and positive y-axis OY. Gamma is the angle between the line L and positive z-axis. Gamma is angle between line L and positive z-axis OZ. Okay, तो ये अल्फा बीटा गामा between line L and positive z-axis OX. Okay, अब आपको पता होना चाहिए कि any point on the line L, ये लाइन 3D में है, तो any point on line L हम रखते हैं P x y z. Any point on the line L is P x y z. Let any point on the line, let any point on, let P x y z be any point on line L. Be any point on line L. अब आप क्या करना है? Alpha is angle between line L and OX. Positive x-axis, beta is angle between the line L and positive y-axis OY. Gamma is angle between the line L and positive z-axis OZ. Here, ये जो alpha, beta, gamma है, वो belong करेंगे close 0 to pi. और ये alpha, beta, gamma को हम बोलेंगे direction angles. And alpha, beta, gamma are called direction angles. Are called direction angles of line L. Are called direction angles of line L. So direction angles क्या हो जाएंगे? Direction angles of line L क्या हो जाएंगे? अल्फा, बीटा, गामा. आपको याद है अगर डायरेक्शन एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा है तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा. डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे तब डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा. तो वो लिखो therefore डायरेक्शन कोसाइंस से लिखो आप डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन L. डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन L आपको मैंने बता दिया अल्फा, बीटा, गामा. तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L तब होंगे cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा. अब आपको पता है डायरेक्शन कोसाइंस का सिंबल हमने क्या रखा था? L and n. So L is cos अल्फा is L. Now let L cos अल्फा is L. हमने let cos अल्फा क्या रखा था? L cos बीटा क्या रखा था? n cos गामा क्या रखा था? n. तो आपको पता है कि therefore तो तब डायरेक्शन therefore आपको पता होना चाहिए cos अल्फा cos बीटा cos n. ना आपको पता है कि अगर अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स
so डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा cos बीटा cos गामा, so therefore आपको थियरी याद है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1, therefore कैलकुलेट l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज 1, l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज 1. ओके, नाउ दूसरा पॉइंट जो मुझे आपको बताना है कि लाइन के दो डायरेक्शंस होते हैं. ओके, तो अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या थे वहां पे cos अल्फा cos बीटा cos गामा. डायरेक्शन कोसाइंस क्या थे cos अल्फा cos बीटा cos गामा. और cos अल्फा क्या है l, cos गामा क्या है m, और cos अल्फा is l, cos गामा cos अल्फा is l, cos बीटा is m, cos गामा is m. डायरेक्शन कोसाइंस, therefore डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन l आप कैसे लिख सकते हैं ऑफ लाइन l, you can also write as l and m. now we relation, now a line has two directions. now line l has two directions, ठीक है. एंड अगर डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा है तो हियर अल्फा बीटा गामा बिलोंग टू क्लोज्ड 0 to pi. तो दूसरा डायरेक्शन कंसीडर करके मतलब रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ लाइन l, उसके लिए दूसरा डायरेक्शन एंगल्स कैसे मिल सकते हैं. तो रिवर्सिंग द डायरेक्शन, ओके, by reversing a line has two directions, तो since और डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा बिलोंग करते हैं closed 0 to pi. तो कैन आई से by reversing direction of line l, मतलब दूसरे डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन एंगल्स क्या होंगे, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन l क्या होंगे, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन l होंगे. अगर एक अल्फा है दूसरा पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा. दूसरा डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा है तो दूसरे डायरेक्शन एंगल्स आप समझ गए. अगर अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं cos अल्फा cos बीटा cos गामा. यहां पे डायरेक्शन एंगल्स क्या है, पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा. देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन l आर क्या होंगे, cos ऑफ पाई माइनस अल्फा, cos ऑफ पाई माइनस अल्फा, cos ऑफ पाई माइनस बीटा, cos ऑफ पाई माइनस गामा. ओके, वो कितना होगा माइनस cos अल्फा माइनस cos बीटा माइनस cos गामा. सो देयरफॉर सीधा आपको याद रखना है कि अल्फा बीटा गामा अगर डायरेक्शन एंगल्स हैं, अल्फा बीटा गामा अगर डायरेक्शन एंगल्स हैं, अगर अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स है, डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा cos बीटा cos गामा जो है 11, और फिर दूसरे डायरेक्शन एंगल्स है पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा. तो उस लॉजिक से डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ l क्या हो जाएंगे, सेकंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन l क्या हो जाएंगे, माइनस cos अल्फा माइनस cos बीटा माइनस cos गामा. ऑब्वियस, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन l अपोजिट में क्या आएंगे, माइनस l माइनस n माइनस n. और हां यहां पे ये बिकॉज़ cos ऑफ पाई माइनस बीटा क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज़ cos ऑफ पाई माइनस बीटा इज माइनस cos बीटा. पाई माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव फंक्शन डजंट चेंज, सो माइनस cos थीटा. तो आपको याद रखना है कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस if the direction angles of line L, अगर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन L, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन L आर अल्फा बीटा गामा, तो डायरेक्शन कोसाइन करके cos अल्फा cos बीटा cos गामा, और वो है 11. और दूसरा डायरेक्शन एंगल्स होंगे पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा, डायरेक्शन कोसाइन होंगे माइनस cos अल्फा माइनस cos बीटा माइनस cos गामा, और इसी डायरेक्शन कोसाइन को किस तरह है माइनस l माइनस m माइनस n. परफेक्टली डन. अब आपको पता है कि एनी पॉइंट थोड़ा डायरेक्शन रेशियोज के बारे में हमको करना है. प्लीज बी वेरी 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 केयरफुल. अब हमारी जो लाइन थी, ओके, सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव
पॉजिटिव ओरिजिन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस OX, पॉजिटिव वाई एक्सिस OY एंड पॉजिटिव Z एक्सिस OZ। हमारी लाइन L, दिस इज आवर लाइन L, इट इज passing through origin, it is passing through origin and any point on the line L, this is our line L, this is our line L, it is making angle alpha with positive x axis OX, it is making angle beta with positive y axis OY, and the line L is making angle gamma with positive Z axis OZ। Any point on the line L क्या था? Any point on the line L क्या था? Any point on the line L मैंने क्या रखा था? Any point on the line L मैंने रखा था P X Y Z। So okay, ठीक है। So here any point on the line L, okay, तो अब यहाँ पे सीधा आपको क्या याद रखना है? Those points which we have done, वो मैं वापस रिवाइज नहीं कर रहा हूँ। अब which is any point on the line L क्या है? Our line L is passing through the point origin and any point on the line is P X Y Z। Okay, so for line L here, okay, so for line L, yeah, here line L is here line L is passing through origin O00 and any point, and P X Y Z is any point on line L, is any point on line L, is any point on line L। तो अब वेक्टर O भी आप निकालना है। तो here O क्या है? origin, और P X Y Z, both the points here O00 and P X Y Z they belong to line L, both the points belong to line L। अब आप वेक्टर O भी निकालो ना। O क्या है? O00, P क्या है? X Y Z। तो OP वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। So it will be X Y Z, it will be X Y Z minus 0 0 0, it will be X Y Z। okay, यहाँ पे ये पोजीशन है। okay, so vector OP is position vector of P, which is X Y Z minus 0 0 0 minus 0 0 0। उस लॉजिक से OP वेक्टर आप डायरेक्टली लिख सकते थे। therefore OP वेक्टर वो एक्चुअली मान लो डायरेक्शन ऑफ लाइन L है, तो मैं ऐसे लिखूंगा therefore OP वेक्टर हो गया X Y Z। let OP वेक्टर is equal to R bar, let OP वेक्टर is equal to R bar। ठीक है, ये थियरी हम कर चुके हैं वेक्टर अलजेब्रा में। let वेक्टर OP is equal to R bar, so vector OP will be equal to R bar, which will be equal to X Y Z। फिर mod of OP निकालो, mod R, इसको छोटा r रखेंगे। so let OP is equal to R bar, therefore vector OP is R bar, वो हो जाएगा X Y Z, जहाँ पे P X Y Z origin O00 है। let now mod of OP vector is mod of R bar, उसको आप छोटा r रखो, उसको आप छोटा r रखो, is equal to स्क्वायर रूट ऑफ कैसे मिलेगा? x square plus y square plus z square। so ठीक है, तो आपको पता है कौन से पॉइंट्स ऑन द लाइन है, कौन से पॉइंट्स ऑन द लाइन है। ओरिजिन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन L, और दूसरा एनी पॉइंट ऑन द लाइन L क्या था? दूसरा एनी पॉइंट ऑन द लाइन L क्या था? P X Y Z। so for सीधा मैं लिख रहा हूं, for origin P X Y Z on line L। आपको पता है वेक्टर OP हमने क्या निकाला? वेक्टर OP वो था R bar X Y Z, और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ OP is mod of R bar, which is छोटा r। therefore mod of OP वेक्टर जो है mod of छोटा r bar, which is r is square root of x square plus y square plus z
Z square, you know it. अब what are the direction angles? Alpha, beta, gamma. Direction angles of, can you recollect? Direction angles of line L क्या थे? Direction angles of line L क्या थे? Alpha, beta, gamma. Now here, direction angles of line L are, now here, alpha, beta, gamma are direction angles. Okay. First set of direction angles क्या थे? Alpha, beta, gamma. Now here, alpha, beta, gamma. Alpha, beta, gamma are direction angles of line L. Direction angles of line L. So direction cosines of line L क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L क्या हो जाएंगे? R cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा. अब आपको पता है कि ये cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा कैसे निकालना है? cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा कैसे निकालना है? अल्फा, बीटा, गामा डायरेक्शन एंगल्स थे, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा. और यहाँ पे हमारे पास ये जो वेक्टर AB है वो क्या है? XYZ और mod of OP is mod R. आपको पता है कि cos अल्फा कैसे निकालते थे? cos अल्फा x कोऑर्डिनेट और the vector OP upon mod of R. So cos अल्फा is x कोऑर्डिनेट. तो आपको पता है cos अल्फा का x कोऑर्डिनेट of OP वेक्टर अपॉन mod of R वेक्टर. cos बीटा क्या आएगा? y कोऑर्डिनेट अपॉन mod of OP वेक्टर. इसके नीचे अच्छे तरीके से ही लिखते हैं. तो ये आपको पता है. Therefore, cos alpha कैसे मिलेगा? The x coordinate upon mod of OP vector which is mod R. Cos beta, can you recollect? The y coordinate y upon mod of vector which is mod of R bar का दूसरा. Cos gamma क्या था? Z coordinate z upon mod of OP vector which is mod R bar. Mod R क्या था? R. So therefore cos alpha स्टूडेंट्स सीधा याद रखते हैं x upon r, cos beta is y upon r और दूसरा cos gamma is z upon r. That you know it now. Okay. अब आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस एलिमेंट है. डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस LMN है. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन क्या होते हैं? LMN cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा. अगर डायरेक्शन एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा, डायरेक्शन कोसाइंस cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा. नाउ लेट cos अल्फा is L, cos बीटा is M, cos गामा is N. तो आपको पता है LMN क्या हो जाएगा? Therefore L क्या हो जाएगा? L will be x upon r, M will be y upon r, N will be z upon r. तो इसमें से x क्या मिलेगा? LR, y क्या मिलेगा? MR और z क्या मिलेगा? MR. वेरी क्लियरली डन. ओके. तो ये जो वेक्टर OP है, therefore for vector OP which is R bar which is x y z which is x y z R bar क्या आया? For vector OP. So for सीधा मैं लिखता हूँ. For O 0 0 0 comma P x y z on line L, on the line L क्या आएगा? वेक्टर OP. वेक्टर OP क्या होता है? R बार वो क्या आएगा? x y z. और यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस एलिमेंट के टर्म्स में x क्या आ जाएगा? LR MR NR. और आप ऐसा लिख सकते हो कि here L क्या है? here L क्या आएगा? M क्या आएगा? N क्या है? और R क्या है? वो आप स्पेसिफाई करो और उसमें फिर आप सारी थ्योरी खत्म कर सकते हो. ये जो LR MR और NR है उसको क्या बोलते हैं? अगर आप लोगों को याद होगा, that also we had done. So here for O on the line OP is equal to x y z x LR MR NR. Now here ये जो L है is cos अल्फा वो था x by r, M था cos बीटा जो था y by r और तीसरा z क्या था?
LMN, sorry, remember it, n का cos गामा वो था z कोऑर्डिनेट z अपॉन r, और इसको अल्फा बीटा गामा को क्या बोलते थे, अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल्स, एंड here mod of OP, mod of vector OP is mod of r which is छोटा r, ये आपको पता है, is square root of x square plus y square plus z square, और हाँ ये अल्फा बीटा गामा क्या है, they are direction angles of line, here अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल्स, मतलब सारे पॉइंट्स एक ही में मैंने लिख दिए ताकि आप लोगों को रिकवर हो जाएगा। हियर अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन है, और आपको याद रखना है कि हियर ये जो अल्फा बीटा गामा है दे बिलोंग टू क्लोज 0 to पाई, ओके, सो ये आपको पता चल गया। अब जस्ट वन मिनट बिफोर फिनिशिंग द थियरी, इट विल टेक 5 to 7 minutes to finish the theory, ज्यादा टफ नहीं है। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन कैसे ढूंढना है वो आपको आ गया। अब इधर ये जो LR, MR और NR है, इधर ये जो x is equal to LR, here ये जो है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो OP जो था, here R बार क्या था, OP वेक्टर था R बार, वो कितना था x y z, और वो कितना था LR MR NR, वो आप यहाँ से आप कर सकते हो, x is LR, y is MR and z is NR। ये जो LR MR और NR है उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। हियर ये आपको याद रखना है, LR MR NR are called direction ratios, और डायरेक्शन नंबर्स are called direction ratios और डायरेक्शन नंबर्स of line L, नंबर्स ऑफ लाइन L, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस को एक r नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो उस लॉजिक से तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L क्या हो जाएंगे, अगर डायरेक्शन कोसाइंस LMN है तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, LR MR या NR, तो उसका मतलब डायरेक्शन कोसाइंस और LR MR NR आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन नंबर्स ऑफ लाइन L। डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन नंबर्स ऑफ लाइन L are denoted by ABC, are denoted by ABC। तो उस लॉजिक से ये जो है LR वो क्या हो जाएगा A, MR वो क्या हो जाएगा B, और NR क्या हो जाएगा C। कैन यू रिकलेक्ट, ये सारी चीजें हमने सीखी कब, इन वेक्टर अलजेब्रा पहले दो टॉपिक में, और मैंने क्या बोला था कि उसी चीज का वापस आपको रिवीजन आएगा ड्यूरिंग द थियरी ऑफ 3D। ओके नाउ क्लियर, तो अब डायरेक्शन रेशियोज क्या थे, LR MR NR, और डायरेक्शन रेशियोज आर डिनोटेड बाय ABC। सो डायरेक्शन रेशियोज हियर क्या था, R बार x y z, और वो है LR MR NR। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या थे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L क्या है, LR MR NR, तो ABC है। तो हियर A is इसको ABC बोलते हैं, तो हियर A is, अब याद रखो, हियर A is LR, B is MR and C is NR। So therefore डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L क्या हो जाएंगे, ऑफ लाइन L वो हो जाएंगे, that will be how much, A B C। और अगर आप ध्यान से देखो तो L अपॉन A क्या होता है R, L अपॉन A क्या होता है R, फिर M अपॉन B क्या होता है, ओके, हियर A अपॉन L क्या है R, फिर ओके, just one minute, I will show you one thing। Okay, so now तो आपको याद रखना है कि so here डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, so डायरेक्शन कोसाइंस
तो अगर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L अगर L and N है तो डायरेक्शन रेशियोज will be A, B, C. Here जो मैंने आपकी थ्योरी बताई, A क्या था LR, B क्या था MR और C क्या था NR. तो इसमें से आप देखो A upon L is R, B upon N is R and C upon N is R. So can I say A upon L is equal to, therefore A upon N is equal to B upon N is equal to C upon N is equal to R. इसका मतलब the direction cosines and the direction ratios are proportional to each other. So we can say the direction cosines and the direction ratios are proportional to each other. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. Therefore डायरेक्शन उल्टा लिख सकते हो. Therefore L upon A will be equal to M upon B, which will be equal to N upon C, which is 1 by R. So therefore डायरेक्शन कोसाइंस आपको याद रखना है. डायरेक्शन कोसाइंस and the direction ratios are proportional to direction ratios. हमने डायरेक्शन रेशियोज क्या थे? ABC of line L are proportional to direction cosines element L and N of line L. Just 1 minute. Okay, I will finish the theory. इसके बाद वाली theory मैं नहीं समझाऊंगा. I will finish this topic within 2 minutes. Okay, so direction cosines element, direction ratios ABC. So A is LR, B is MR and D is NR. डायरेक्शन रेशियोज क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज को क्या बोल सकते हैं? डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन नंबर्स भी बोलते हैं. और यहाँ पे मैंने प्रूव किया कि डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. अब क्या आएगा आपको पता है कि लेट द डायरेक्शन लेट एलिमेंट, अब थोड़ा अलग से मैं बता रहा हूँ, ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट एलिमेंट बी डायरेक्शन कोसाइंस of line L, B direction cosines of line L. Okay, and ABC, छोटा a, BC are direction ratios, or direction numbers of line L. तो आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस एलिमेंट एंड डायरेक्शन रेशियोज ABC are proportional to each other. उसका मतलब can I say L upon A will be equal to R proportional to each other. उसका मतलब can I say L upon A will be equal to M upon B will be equal to N upon C. Suppose L upon A is equal to M upon B is equal to N upon C. वो रेशियो आप रखोगे. Let L upon A is equal to M upon B is equal to N upon C is K. So therefore L upon A क्या आएगा? L upon A is K, M upon B is K, N upon C is K. So L क्या हो जाएगा? L हो जाएगा K, M हो जाएगा KB और N हो जाएगा KC. अब आपको पता है डायरेक्शन कोसाइन से क्या रिलेशन है? L में आपका डायरेक्शन कोसाइन, so L square plus N square plus N square क्या होता है? L square plus M square plus N square. Now here L square plus N square क्या है? 1. So A का स्क्वायर मतलब A square plus K square B square plus K square C square क्या हो? 1. वेरी सिंपल. K square कॉमन निकाल दो तो K
के स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, के स्क्वायर का वैल्यू आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो के हमको पता नहीं है, वो नॉन जीरो नंबर है, आप के को नॉन जीरो सोचो। सो देयरफॉर के स्क्वायर यू टेक आउट कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हिच इज 1। तो इसमें से आपको के स्क्वायर क्या मिलेगा, के स्क्वायर आपको मिलेगा, सो यू विल एंड अप गेटिंग के स्क्वायर एज 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो के विल बी प्लस और माइनस, सो के विल बी प्लस और minus k will be plus or minus 1 upon square root of a square plus b square plus c square. So k square into a square plus b square, so k will be plus or minus 1 upon square root of a square plus b square. तो उस लॉजिक से अब डायरेक्शन कोसाइंस therefore k क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब l क्या है ka, m क्या है kb और n क्या है kc। तो आपको याद रखना है, नाउ हियर l is ka, m is kb, n is kc। तो उस लॉजिक से l का वैल्यू क्या है, दो आए देखो। So we will have two direction cosines. मैथमेटिकली मैंने आपको प्रूव करके दिया। और डायरेक्शन कोसाइंस एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो तो l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर वो क्या है, अगर वेक्टर में लिखो डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर cos α cos β cos α। देयरफॉर l क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, k क्या है प्लस और माइनस, तो l कितना हो जाएगा प्लस और माइनस a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। m कितना हो जाएगा प्लस माइनस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और n कितना हो जाएगा प्लस और माइनस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिनिश। तो दो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे l m n and this have the real theory finish। तो आप समझ गए, अगर डायरेक्शन रेशियोज ABC हैं, अगर डायरेक्शन रेशियोज ABC हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे L a अपॉन प्लस और माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, n प्लस और माइनस b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और n प्लस और माइनस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इन आपको खाली इतना याद रखना है कि लेट ABC b डायरेक्शन रेशियो, मतलब डायरेक्शन रेशियो अगर हमको पता है, डायरेक्शन रेशियो अगर पता है तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, सपोज वो लाइन L है और सपोज इट इज A B C, इट इज गिवन, तो आपको सीधा याद रखना है उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियोज अगर ABC है तो आपको सबसे पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकालने का, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालने का। सो फिर आपको क्या करने का, फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ, एंड देन ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और डायरेक्शन कोसाइंस लेट एलिमेंट b डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L, ऑफ लाइन L। तो L क्या आएगा, प्लस और माइनस a, प्लस और माइनस a। तो उसमें आपको याद रखना है L होगा प्लस और माइनस a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। m होगा प्लस और माइनस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और n क्या होगा, n होगा प्लस और माइनस, n होगा प्लस और माइनस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब आपको डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर में जो भी टॉपिक था उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दिस today's theory and today's class revise the theory, the exercise is very easy। एक ही टॉपिक है और एक टॉपिक मैं खत्म करूंगा तो आराम से फिर हम एक्सरसाइज 11.1 खत्म कर सकते हैं। So that's it for today. Thank you, work hard, take care, don't waste your time।